Yes, children, we are starting with Kingdom Monera. I am on page number 18 of our NCERT book. So, Kingdom Monera, the first kingdom under the 5 kingdom system of classification. So, children, what we are going to study in this, that the main members which comes under Kingdom Monera, they are the bacteria. Okay, bete, so bacteria are the microorganisms because it is not possible for us to see them by our naked eyes. So that's why they come under microorganism and we use the microscope to see bacteria. Another very important thing is that these are cosmopolitan in nature. Cosmopolitan word here means that they are found everywhere. They are enjoying every kind of habitat. So yesterday I have already described that they are very much adapted to extreme harsh conditions that are available in the habitat. Okay, you can very easily find these bacteria in hot springs, in deserts, in snow-covered mountains. Okay, even in the deep ocean water, you are able to find these bacteria. Another very important thing is that what about their nature? So these bacteria, they are generally parasitic in nature. They are the disease-causing pathogens. तो ये generally जो है वो host organism में enter कर जाते हैं and they cause disease in them, so they are pathogenic in nature. Regarding their shape, so on the basis of their shape, we have divided the bacteria into 4 categories. So that are very much familiar to you now. Spherical bacteria are known as coccus. Then we have rod-shaped bacteria. Rod-shaped bacteria, they come under bacillus. Comma-shaped bacteria, which come under vibrio, and spiral-shaped bacteria, which come under spirillum. ओके बेटे, तो कहते हैं कि जब भी आप बैक्टीरियल सेल को देखते हैं ना तो इट लुक सिंपल टू यू, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट केस. द बैक्टीरियल सेल, इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन. तो बैक्टीरिया जो है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म, दे शो अ वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. सो मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे आर जनरली फाउंड इन दीज बैक्टीरिया. So regarding their mode of nutrition, so some of the bacteria, they are able to synthesize their own food with the help of inorganic substrates. Okay, so they may be photosynthetic autotrophs in nature if they are synthesizing their food with the help of sunlight, then they are photosynthetic autotrophs. Otherwise, sometimes they are behave as the chemosynthetic autotrophs. So I have already explained that chemosynthetic autotrophs means if they are using certain chemicals for synthesizing their food. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थायोबैसिलस का, तो थायो वर्ड हमेशा हम यूज करते हैं सल्फर के लिए. सो दीज आर द सल्फर बैक्टीरिया. तो ये सल्फर एटम्स जो हैं उनको यूज करते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत तरह के बैक्टीरियाज हैं. और उसके बाद वो कहते हैं कि समटाइम्स व्हेन द कंडीशंस दे आर नॉट फेवरेबल इन देयर हैबिटेट, in that situations these bacteria, they behave as the heterotrophs. In that situation they depend upon other organisms for obtaining their food. So किसी भी तरह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं. तो sometimes what you see that these bacteria, they generally grow on dead and decaying objects. ठीक है, तो they obtain nutrition from them. So when they obtain nutrition from dead organic matter, ठीक है, तो you know that mode of nutrition is known as saprotrophic. तो फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही saprotrophs होते हैं. ओके बेटे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो we have here 2 types of bacteria, archaebacteria and eubacteria. Okay, so what is the basic difference between these archaebacteria? I have already described that archaebacteria are those bacteria which were generally found on the surface of Earth. And they are the earlier one, they are the primitive type of bacteria. When the evolution of the earth takes place, at that time the first organisms that appear on the surface of the earth, they are the archaebacteria. So they have very primitive type of features. As you know that bacteria के अंदर prokaryotic cell होता है. So this prokaryotic cell, it do not have well defined nucleus, as well as the membrane bound organelles are also not there. If you have draw the diagram of bacteria in your notebook in class 9th, then you see that the bacteria has a tough hard protective coat and that is known as capsule. ठीक बेटे, यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ है कैप्सूल उसके अंदर प्रेजेंट होता है.
ठीक है। देन इट हैज इट्स ओन सेल वॉल, तो ओन सेल वॉल जो है यहाँ पे इसकी सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, पेप्टिडोग्लाइकन्स आर देयर। ओके, और उसके बाद हमें बैक्टीरियल सेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ओके बेटे, फ्लैजिला इज आल्सो देयर बिकॉज प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये। तो फ्लैजिला is meant for the purpose of locomotion. Then plasma membrane next to the cell wall, plasma membrane is there. Then they have ribosomes, ठीक है, for the synthesis of proteins. And then DNA depend upon what kind of nuclear material is present. So sometimes DNA or sometimes RNA is there. Then cytoplasm is there. What is the special thing about these bacterial cells? So here in case of bacterial cells, the nuclear material. Okay, but the nuclear material as a well-defined nucleus is not there, so nuclear material is accumulated at a particular place. ठीक है, तो एक खास जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसका पड़ा रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। ओके बेटे, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं। सो दीस बैक्टीरिया एज दे आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सो दे आर अडेप्टेड टू लिव इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, whatever conditions they are present in their habitat, they are the extreme type of conditions. So sometimes such type of bacteria they are found in the salty lakes, ठीक है, rivers. तो अगर इस तरह की लेक्स या रिवर्स जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बैक्टीरियाज मिलते हैं, तो such type of bacteria are known as the halophiles. Okay, beside halophiles we have another type of bacteria who are able to survive in extremes of temperature. ठीक है, टेम्परेचर ऐसी लेक्स में, स्प्रिंग्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, such type of bacteria are present and they are known as the thermoacidophiles. Those bacteria which lives in hot springs, they are known as thermoacidophiles. So thermoacidophiles के अलावा we have another type of bacteria which are generally found in the marshy areas. ठीक है, तो you know that in marshy areas by the decomposition of the organic matter one gas is produced and that is known as the methane gas. So mostly these bacteria they are responsible for the generation of methane gas, so that's why they are known as the methanogens. Okay, but another very important thing is that as they are adapted to the extremes of conditions, adverse conditions that are found in their habitats, so they have a different type of wall structure. ठीक है, उनकी सेल वॉल जो है बहुत ही एडवांस होती है और ऐसी होती है कि वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस कर सकती है। ओके, और उसी की वजह से वो ऐसे एडवर्स एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। एंड दिस मेथनोजेंस व्हिच आर एक्चुअली द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन द गट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, ठीक, जो एनिमल्स जो हैं ग्रासेस लेते हैं, ठीक है, तो उनका आपको पता है कि दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टमक नोन एज कंपाउंड स्टमक एंड वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ दिस कंपाउंड स्टमक इज रूमेन। तो इस तरह के जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल काउज हैं, बफेलोज हैं, सो उनके जो गट होता है उसमें भी सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड व्हिच आर नोन एज मेथनोजेंस एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द डंग ऑफ दीस एनिमल्स। सो इन द डंग ऑफ दीस एनिमल्स these bacteria are found and here they are also involved in the process of methane production. तो जब आपको पता है कि sometimes the biogas plants are there in the rural areas, okay, villages. So in these villages, in the biogas plant, what people generally put, they put a dilute form of the cow dung along with the some of the dried grass in the form of a slurry. So such type of cow dung slurry, it actually contains these methanogens and because of that biogas is produced and the chief component of this biogas is methane. Okay, so now I'm going to tell you in detail about the eubacteria. So eubacteria are those bacteria which are now living with us in present times. So these are the two type of bacteria and they are regarding their cell wall. So they have a rigid type of cell wall and flagellum is also there in these bacteria. So these flagellum may be present at the anterior or the posterior position. Okay, बेटे, तो example अगर हमने देना हो यूबैक्टीरियाज का, the example of eubacteria is cyanobacteria, ठीक है, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नेम से भी जानते हैं। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि these cyanobacteria they are photosynthetic in nature.
so they are able to produce their food. So for this purpose they have special type of chlorophyll pigment, green in color, that is chlorophyll A. ठीक बेटे, अब तक आप लोअर क्लासेस में व्हाट यू हैव स्टडीड, हम आपको बताते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, पर अभी तक हमने आपको कभी नहीं बताया कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत तरह की होती है। तो उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोकोवलेंट्स, ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। तो हमेशा याद रखिए द चीफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल व्हिच इज प्लेइंग मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो साइनोबैक्टीरियाज जो हैं उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर व्हाट यू मस्ट हैव टू स्टडी दैट these cyanobacterias they are generally unicellular. ठीक है, they are made up of one cell sometimes, and sometimes so many cells they live together, so they are in the form of colonies. And sometimes there are so many cells they are arranged themselves in a form of a chain, जैसे एक सेल के बाद दूसरा, ऐसे एक चेन बनी हुई है सेल्स की. So this is known as filamentous cells. And regarding their habitat, so they may be found in the fresh water or they may be found in the marine environment. Oceans में भी हमें मिल सकते हैं, and sometimes they are also present on the terrestrial environment where the moisture is there. Okay बेटे, colonies की अगर हम बात करें तो it's so many bacterial cells they are living together in the form of a colony. So all of these cells they are surrounded by a gelatinous sheet. ठीक है, तो एक gelatinous sheet के अंदर बहुत सारे जो है बैक्टीरियल सेल्स एक साथ रह सकते हैं, तो उसको हम उसकी कॉलोनी कहते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि समटाइम्स हाउ यू ऑब्जर्व दिस दैट समटाइम्स सम स्टैग्नेंट वाटर इज देयर, कुछ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज अगर आपको नजर आती हैं तो उस पे ये बैक्टीरिया जो हैं वो आपको फ्लोट करते हुए नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लूम्स. ठीक है, तो कई बार किसी जगह पे स्टैग्नेंट वाटर होता है तो वहां पे आपको एल्गी के साथ बैक्टीरियल जो है कॉलोनीज भी फ्लोट करते हुए नजर आती है. And regarding the functions they are playing for us, so one of the important functions of these cyanobacteria are they fix atmospheric nitrogen. ठीक बेटे, तो ये atmospheric nitrogen जो है उसको फिक्स करते हैं और इससे वो कहते हैं कि प्लांट जो है उसकी ग्रोथ होती है, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो for fixing the atmospheric nitrogen they have special type of cells present in them. ठीक है, see the figure that is given in your book, figure number 2.2, a filamentous blue green algae non-stop आपको नजर आ रही है. तो this algae is in the form of filament, so many cells they are attached with each other in a chain like fashion. To see the special type of cells which are present in these chain of cells, they are known as the heterocysts. So these heterocysts they are the special cells where they store this nitrogen and later they fix atmospheric nitrogen for the plants. So some of the examples of this type of cyanobacteria are non-stalk, Anabaena. ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे आपको ये non-stalk और Anabaena? तो जनरली आप देखते हो कि जब फार्मर्स दे आर डूइंग द पैडी कल्टीवेशन, तो राइस की जो हमने प्लांटलेट्स लगाई हुई होती हैं, सीडलिंग्स होती हैं, उसके अंदर आप वाटर जो है उसको खड़ा करके रखते हैं. तो अगर आप दूर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ब्लू शाइनी ब्लू ग्रीन कलर अपीयरेंस आपको नजर आता है आपकी आईज को. तो दीज आर एक्चुअली द कॉलोनीज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया. Okay, another very important thing is not only photosynthetic autotrophs, some of these bacteria they are the chemosynthetic autotrophs too. And in these chemosynthetic autotrophic bacteria, so they generally involved in the process of oxidation of various inorganic substances. Okay, you have heard about the process of nitrogen fixation in your previous classes. So you know that nitrogen is present in the atmosphere as nitrogen gas. But plants cannot take this nitrogen in the form it is present in the atmosphere. ठीक है, this nitrogen which is actually gaseous in nature, it must have to be converted into different compounds of nitrogen, and in that way the plants they generally absorb them. ठीक है, तो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में नहीं लेते हैं प्लांट, या तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन प्लांट उसको ले पाते हैं. तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये नाइट्रोजन जो है उसको एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. ठीक बेटे, तो इसके साथ साथ वो कहते हैं कि दे आल्सो रिलीज एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. And another very important thing is they are also involved in the recycling of certain important nutrients.
such as nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ठीक है, तो you have heard about so many biochemical cycles that are occurring in the nature. ठीक है, आपने 9th क्लास में कई बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, when any of the plant it dies, so these bacteria they help in the decomposition of the organic matter present in the plants, and in this way they release the inorganic substances that are present in the organic matter, and in this way they return these nitrates, or you can say nitrogen, phosphorus, iron and sulfur type of elements to the soil. तो इस तरह से वो कहते हैं कि सॉइल से फिर प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं. इस तरह से वो घूमते रहते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है, नॉट ओनली एटमॉस्फेयर, मतलब कहने का मतलब है अर्थ में जो है वो घूमते रहते हैं इस तरह से. तो रिसाइक्लिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है. ओके बेटे, तो ये तो थे कि व्हेन दे आर ऑटोट्रॉफ्स तो दे में बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, बट समटाइम्स देयर आर सम हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज टू. ओके, so among the heterotrophic bacteria, so generally as you know that these are the heterotrophic bacteria, this means they are dependent on others for obtaining their food. So most of the heterotrophic bacteria, they are actually the decomposers, means they decompose some of the dead and decaying substances, and in this way they obtain their food. But sometimes they are very much helpful for us. They are of economic importance for us. They are playing an important role for the welfare of the human beings. So one of such bacteria that is very much familiar to you, okay, which is making curd from milk for you, and that is known as lactobacillus. Okay, there are some of the bacteria which are involved in the production of the antibiotics. ठीक है, तो antibiotics का production करने में भी bacteria का important role है. तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया. ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक्स जो है हमको प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होती है. Fixing nitrogen in the legume roots. Can you give me the name of bacteria that is living in the roots of the leguminous plants? Yes, students. The bacterium which is found in the roots of the legumes and fix nitrogen for the plant. What is the name of bacterium? Speak loudly. Rhizopus. Rhizopus is a fungus, बेटे. R से ही है उसका भी नेम. Rhizopus is the scientific name for bread mold. Okay, and the name of the bacterium here is Rhizobium. ठीक है, Rhizobium. और इसके अलावा और भी कई सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमें लेग्यूम प्लांट्स के अंदर नजर आते हैं. नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस इज आल्सो देयर, नाइट्रोसोबैक्टर इज आल्सो देयर. ओके, तो कहते हैं कि बहुत सारे रोल प्ले करते हैं ये आपके लिए. नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं लेग्यूम प्लांट्स के अंदर. लेग्यूम प्लांट्स के अंदर ये सारे आ जाते हैं. ठीक है, पीज हैं, राजमास हैं, बीन्स हैं, ऑल टाइप ऑफ पल्सेस दे कम अंडर लेग्यूमिनस प्लांट्स. एंड सम ऑफ द बैक्टीरियाज दे आर पैथोजेनिक इन नेचर. ठीक है, पैथोजेंस होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, क्रॉप्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में. ठीक है, आपके पेट्स में भी डिजीज कॉज कर देते हैं. So there is one bacterium that is causing a disease, cholera. Can you tell me the name of that bacterium? Cholera. I have already told you the name, and the name of the bacterium is Vibrio cholerae. Vibrio. Okay, Vibrio cholerae causing cholera. And then there is a bacterium that is causing typhoid fever in human. So remember the name. The name of the bacterium is Salmonella typhosa. या फिर अगर इतना बड़ा याद नहीं होता है तो याद रखेंगे साल्मोनेला टाइफाइड इज द बैक्टीरियम जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है. एंड देयर इज वन अनदर बैक्टीरियम दैट इज कॉजिंग टेटनस. अनदर नेम ऑफ टेटनस इज लॉकजॉ. ठीक है, इसमें क्या होता है आपके बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं और दोबारा रिलैक्स नहीं हो पाते, तो उससे पर्सन की डेथ हो जाती है सीवियर कंट्रैक्शन से. इसको टेटनस कहते हैं. एंड द बैक्टीरियम व्हिच कॉजेस दिस डिजीज इज क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई. ओके बेटे, इसके अलावा आपको एक डिजीज नजर आती है प्लांट्स में. ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये डिजीज नजर आती है. फॉर एग्जांपल आपके लेमन है तो कई बार व्हाट यू सी ये लेमन जो होता है ना उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर के आपको स्पॉट्स नजर आते हैं. ठीक है,
तो वो ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपने एप्पल पे भी देखे होंगे, मौसम्बी में भी आपको नजर आते हैं, ऑरेंजेस में भी नजर आते हैं. सो दिस डिजीज इज नोन एज सिट्रस कैंकर and it is also caused by a bacteria. Okay, student, regarding the reproduction in bacteria, so most of the bacteria they reproduce by the simple method of fission only. ठीक है, तो fission इनके अंदर जो है method of reproduction है, but when the conditions are not favorable, when the conditions are unfavorable, in that situation these bacteria they generally produced the spores. Okay, और अगर वो कहते हैं कि वो sexually reproduce करते हैं, तो सिंपली क्या होता है कि टू बैक्टीरिया दे ले साइड बाय साइड, दो बैक्टीरिया अपने आप को अटैच कर लेते हैं एंड दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल विद ईच अदर. सो दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेथड कि दो बैक्टीरिया जो हैं दे अटैच्ड विद ईच अदर एंड देन दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल. तो दिस इज द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके बेटे, तो दैट्स ऑल अबाउट यू बैक्टीरिया. Proceeding with the next one, the mycoplasma. Okay student, mycoplasma, you have not heard this name earlier. हो सकता है कभी कभार सुन लिया हो आपने. तो these mycoplasmas are actually those organisms that completely lacks a cell wall. इसमें कोई cell wall present नहीं होती है, ये aggregate होते हैं cells के, पर इनकी cell wall नहीं होती. और अब तक जितने भी living cells हैं ना, उसमें सबसे smallest type of living cells are these mycoplasma, and they can survive under anaerobic conditions. उनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, वो एनारोबिक कंडीशंस में इजीली सरवाइव कर सकती हैं. और माइकोप्लाज्मा जो है उनका भी नेचर पैथोजेनिक है. दे कॉज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स. सो देयर इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू. ठीक है, टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन अगेन, गिव मी सम डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. तो आज आपने फाइंड आउट करनी है कौन सी डिजीज माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट्स में कॉज करती है. ओके बेटे, तो ये छोटा सा होमवर्क है. आगे चलते हैं. तो वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट किंगडम एंड द नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अंडर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द सेकंड किंगडम. ओके बेटे, हाँ जी, यस बेटे. हरजोत, यू वांट टू से समथिंग? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी. मैम ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा. अच्छा, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटे. अभी कैसी आ रही है इस टाइम? अभी ब्रेक हो ठीक रही है है. मैम, स्टार्टिंग से ही क्रैक हो रही थी. अच्छा, राजवंत मैम यहाँ पर क्लियर है, मुझे हो सकता है इनके नेटवर्क प्रॉब्लम हो. बेटा एक बार नेट चेक करो, इधर तो क्लियर सुन रही है मुझे. हाँ. बेटे फिर ऐसा होगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक होगी. ठीक है बेटे, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है. उपासना मैम इज आल्सो सेइंग कि मैम को इजीली आवाज अच्छी तरह से आ रही है, तो देयर माइट मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम विद यू. हाँ जी. ठीक, सो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सही आएगी, नो प्रॉब्लम इज देयर. सो बेटे वी आर प्रोसीडिंग विद किंगडम प्रोटिस्टा. सो किंगडम प्रोटिस्टा आर द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. ठीक है, if I am saying eukaryotes, this means they are the well defined, they have well defined nucleus and membrane bound organelles are also there. Okay, तो प्रोटिस्टेंट्स जो हैं मोस्टली वो कहते हैं कि सम ऑफ द प्रोटिस्टेंट्स में भी फोटोसिंथेटिक. ठीक है, कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, और कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको वो कहते हैं कि सम ऑफ द प्रोटिस्टेंट्स लुक लाइक एज दे आर प्लांट्स, पर वो एक्चुअली प्लांट्स नहीं होते हैं. ठीक, पर वो प्लांट्स जैसा अपीयरेंस जो है वो रख सकते हैं. तो वी हैव डिवाइडेड हियर द प्रोटिस्टेंट्स इनटू 4 टाइप्स. तो नंबर 1 इज द क्राइसोफाइट्स, देन वी हैव डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन वी हैव यूक्लिनोइड्स. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स होते हैं एंड प्रोटोजोन्स होते हैं. तो आई एम अगेन रिपीटिंग, वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्टेंट्स. These may be chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. Okay बेटे, तो kingdom protista जो है वो कहते हैं कि it form a link with the other kingdoms such as kingdom plantae, animalia, and fungi. Okay, regarding their special features that are found in kingdom protista. So here in case of protistans, a well-defined nucleus is there, membrane-bound organelles are also there. ठीक है, और इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो या तो सीलिया हो सकते हैं या फिर फ्लैजिला हो सकते हैं. तो अगर उनके अंदर सीलिया है तो दे आर नोन एज सिलिएट्स. इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट
देन फ्लैजिलेट्स उनको हम बोलेंगे। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो जनरली दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली, या तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सेल फ्यूजन इज देयर, देन zygote formation is also there. So we take one by one each protestant. The first come under this is the chrysophytes. ओके बेटे, क्राइसोफाइट्स जो है उसमें टू टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट्स आ जाते हैं। वन आर नोन एज द डायटम्स एंड अदर आर नोन एज द गोल्डन एल्गीज, ठीक है, जिसको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। So where these are generally found, so these diatoms and golden algae which are known as desmids, they are generally found in the marine habitat as well as the fresh water, ठीक है। What about their appearance? तो ये generally microscopic होते हैं and how you observe them, तो they generally see floating passively on the water currents like planktons, ठीक है। तो कई बार अगर आप वाटर करंट्स जो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर जो है ये बैक्टीरिया जो है उनकी पूरी की पूरी एक लेयर जो है आपको चलते हुए नजर आती है। ओके, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स, जनरली फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड। अगर हम डाई एटम्स की बात करते हैं तो डाई एटम्स में जो सेल वॉल होती है उनकी, दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है। जैसे हमारे पास सोप बॉक्स होता है ना, तो उसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से वो कहते हैं कि डाई एटम्स जो है उसकी सेल वॉल जो है वो उसमें टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं एज इट इज फाउंड इन अ सोप बॉक्स। और इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका इज प्रेजेंट, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, so you cannot easily destroy the cell wall, and when these diatoms they left their habitat, ठीक है, जब ये डाई एटम्स जो है वो अपने हैबिटेट को छोड़ देते हैं तो एट दैट टाइम दे लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ देयर सेल वॉल इन देयर हैबिटेट, ठीक है। उनका हैबिटेट जो है वहां पे सेल वॉल जो है उसके कुछ रिमेन्स को उसी जगह छोड़ देते हैं, एंड व्हेन दीज रिमेन्स दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग बिलियंस ऑफ इयर्स, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स द डायटमेशियस अर्थ। तो ये डायटमेशियस अर्थ जो है वो एक ग्रिट की तरह होती है, ठीक है। तो इसे ग्रिटी सॉइल की तरह होती है एंड इट इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, फॉर पॉलिशिंग थिंग्स। अगर किसी चीज को हमने चमकाना है, ठीक है, उसकी पॉलिशिंग करनी है, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिल्टर्स फॉर द फिल्टरिंग ऑफ ऑयल्स, ठीक है, स्ट्रिप्स को फिल्टर करने के लिए, ऑयल्स को फिल्टर करने के लिए। और डाई एटम्स जो है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो सी हाउ दिस डाई एटम्स दे लुक लाइक, ऐसे नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो कई बार आपने ये देखे भी होंगे, कई बार जहाँ पे मॉइस्चर वाले लीव्स होते हैं ना वहां पे ये आपको चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अगर बारिश होके हटी है तो उस दौरान आपको ये नजर आएंगे। सो दीज आर द डाई एटम्स। ओके बेटे, तो प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, तो मोस्टली जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं दे आर जनरली द मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो मेरीन है, फोटोसिंथेटिक है, एंड दे अपीयर डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के हमें नजर आते हैं। दे मे बी ऑफ येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, ब्लू एंड रेड कलर। So whatever type of pigments they are actually present in these dinoflagellates, accordingly their उनका color होता है। So if we are talking about their cell wall, तो their cell wall is a very you can say stiffy in appearance because of the presence of cellulose plates in them, ठीक है। तो cell wall इनकी कैसी होती है, stiff होती है और उसमें cellulose plates जो हैं वो present होती हैं। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे हैव टू फ्लैजिला। ओके, सी इन योर बुक द पिक्चर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स आर देयर। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स दे हैव टू फ्लैजिला, वन फ्लैजिला इट लाइज एट द लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन एंड अनदर फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट द ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो जो वॉल प्लेट्स होती है ना उसके बीच में से फ्लैजिला अराइज होते हैं। तो जनरली इफ यू सी द रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, इन केस ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स जिनको कि हम गोनियोलैक्स कहते हैं,
So these goniolates, they are actually the red kind of red dinoflagellates. And there is a special property found in these red dinoflagellates that they can multiply very rapidly. ठीक है, बहुत ही rapidly जो है ये multiply कर सकते हैं. So sometimes when you sit at the bank of a river or a sea, ठीक है, कई बार आप sea जो है उस पे एक साइड पे बैठ के अगर देखते हैं, ठीक है, तो sometimes what you see that red tides they generally found in the sea. तो red tides जो होती हैं, जो sea में उठने वाली tides है, उनका जो red color है ना, वो इन red dinoflagellates की वजह से होता है, जिनको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पे गोनियोलैक्स कहते हैं. तो वो इसलिए है बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, बहुत ही फास्टली जो है ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसीलिए जो सी के अंदर, ओशियंस के अंदर जो टाइड्स होती है, उनका कलर इनके इतने ज्यादा अमाउंट की वजह से आपको रेड नजर आता है. ठीक है, दे आल्सो प्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ टॉक्सिन्स. तो वो कई सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, और ये टॉक्सिन्स जो है वो इतने ज्यादा पॉइजनस होते हैं कि दे कैन इवन किल द लार्ज मैरीन एनिमल, ठीक है, सच एज बिग फिशेस. ओके बेटे, तो दीज आर द डायनोफ्लैजिलेट्स. और डायनोफ्लैजिलेट से अगर हम आगे चलते हैं, तो फर्स्ट मैंने आपको प्रोटेस्टेंट्स में बताया था डायटम्स के बारे में, देन मैंने आपको बताया डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, देन वी हैव यूग्लिनॉइड्स. तो व्हाट आर दीज यूग्लिनॉइड्स? देखो नेम से पता लग रहा है, यूग्लिनॉइड्स का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो है इट इज यूगिलिना. सो मोस्ट ऑफ द यूग्लिनॉइड्स दे आर जनरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर. ठीक है, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं हमें, या फिर if rainfall is there and some of the water ठीक है, it is kept in some ditches, और कोई भी छोटी मोटी जगह में पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है, stagnant water is there. So in that situation these euglenoids they are generally formed. And what is the special thing about their structure कि जो euglenoids होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है उसके अलावा one protein rich layer is also found, and that protein rich layer is known as pellicle. ओके बेटे, तो पेलिकल जो है इसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है जो यूग्लिनॉइड्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होती है. तो हियर आई हैव शोन यू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट्स. तो उसमें से यूग्लिनॉइड्स जो है उसमें यूगिलिना आ जाता है. फ्लैजिलास कितने होते हैं? 2 फ्लैजिलास आर देयर, ठीक है, शॉर्ट फ्लैजिला एंड अ लॉन्ग फ्लैजिला. And what about the mode of nutrition? तो ये photosynthetic होते हैं. They can prepare their own food in the presence of sunlight. And if abundance of sunlight is not there, ठीक है, plenty of sunlight अगर इनको नहीं मिलती है, in that situation they behave as heterotrophs, means they are dependent on other plant or other animals for obtaining their food. So when they behave as heterotrophs, they generally act as predators on the smaller animals. तो स्मॉलर एनिमल्स जो इनके ऊपर ये फीड करते हैं. एंड दिस यूग्लिनॉइड्स दे आल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, सच टाइप ऑफ पिगमेंट्स व्हिच आर आल्सो फाउंड इन केस ऑफ हायर प्लांट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स आर देयर. तो सच टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन दीस यूग्लिनॉइड्स टू. एंड बिकॉज ऑफ दिस यूग्लिनॉइड्स they later in the earlier system of classification, क्योंकि इनमें इतने तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको पहले हमने प्लांट्स के साथ रखा था. तो इसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखा था, प्लांट्स में रखा था, क्योंकि प्लांट्स की तरह इसमें भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके बेटे, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे यूग्लिनॉइड्स को. यूग्लिनॉइड्स आर ऑलवेज फाउंड इन फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर, and they have a cell wall, but next to the cell wall a protein rich layer is present, which is known as pellicle. How many flagellas are there? 2 flagellas are there. One is short and other is long, and they are photosynthetic in nature. They can prepare their food with the help of sunlight, but when sunlight is not present in plenty, in that situation they behave as heterotrophs. So they act as predators on some of the small animals. Another very interesting thing is, as the pigments, different type of pigments are found in case of plants for the purpose of photosynthesis. So similarly in these euglenoids, इन euglenoids जो है इनके अंदर भी pigments present होते हैं, ठीक है, और इसका common example जो है वो यहाँ पे यूगिलिन है. तो हम आज यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स. ओके बेटे, सो आज आप रीड कर लेंगे अप टू पेज नंबर 21 तक.